Hello, bankers. A very good evening to all of you. Welcome back. So, in this session, we are going to continue with our discussion based on AFM paper, right? So, every day we generally practice one set of question with in the name of mini mock. So, again, today we are going to practice a set of question based on AFM subject, right? So, I hope you guys are watching these particular videos on regular basis. One concerning thing about AFM and PPV paper is, so just after IE and IFS, you will get only 1 week, and within 1 week you have to solve both the paper, right? तो दोनों आप बैक टू बैक आपका फेस करने वाले हैं. तो मेरा सजेशन रहेगा कि अभी से थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट कीजिए जिससे एंड टाइम में आपका प्रॉब्लम ना हो. ठीक है. तो वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कराया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपका कराया जाए जिससे आने वाले समय में आप अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएँ. ठीक है. चलो, तो इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल, प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड do like our videos and do share with your friends also, and do join our telegram group. Link is given in the description box. You can send us your queries or if any help required from our side. And for PDFs, comprehensive PDFs, you can join our you can download our application as well. So in free course material section you will find videos as well as PDF, right? So now we will start our today's discussion with the very first question. So the question is accounting standard 7 address accounting for construction contract, focusing on how to recognize and measure revenue and cost for these contract, which are often extended over several accounting periods. One kind of contract under accounting standard 7 is a cost plus contract, which of the following statement accurately describe cost plus contract. ठीक है. So accounting standard 7 which generally deal with the construction contract. ठीक है. And even this is also part of your module D. So जहाँ पे अगर आप type of costing की देखते हैं, so there is a costing method which is known as, there is a costing type which is known as contract costing. Contract costing usually क्या होता है, जहाँ पे the project tenure is completion time duration is more than 1 year, usually for 5 years 7 years, जैसे construction of highway, construction of dam, airport and others. So how companies will realize their profit during the first year, second year or others. तो इसमें हमने वहाँ पे profit to date आपका समझा था. Now this question is based on cost plus contract. ठीक है. So the buyer agree to pay the seller a fixed price for the project regardless of the actual cost. No, actual cost will be payable. Okay. So the contract price is determined based on the estimated cost of project without considering any changes in variation. There will be changes in variations. Okay. Seller is entitled to recover the actual cost incurred along with an agreed profit upon margin or fee. So this is 100% true. The seller is only reimbursed for the direct cost. No, but the variable additional cost will be also part of this one. So option number, statement number 3 will be right answer for this particular one, right? So in cost plus contract, the seller is reimbursed. Seller is reimbursed for the actual cost incurred in the project, in including direct cost and sometimes indirect cost and overheads as well. Additionally, the seller is entitled to a profit margin or fee, which is typically agreed upon in advance. This allows the seller to recover their cost and earn a reasonable profit for their services. So this type of contract is commonly used in situation where the scope of work or project requirement are uncertain, making it difficult to determine a fixed price upfront. ठीक है. तो जैसे जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट आपके होते हैं उन सब के सिचुएशन में. नेक्स्ट वन, ABC Corporation is a manufacturing company that use double entry system to record its financial transactions. The company bought raw material worth rupees 50,000 on credit. The entry is raw material account debited to your account payable 50,000. How does this transaction will affect accounting equation? Means what will be the impact on assets, liabilities and equity? First of all, there will be no impact on equity and their assets and liabilities will increase by 50,000 each, right?
वाई सो? देखो क्या होता है, एसेट्स में हमारा क्या ऐड होगा, रॉ मटेरियल कितने का, 50,000 का, लाइबिलिटी इट इज पेबल, ठीक है, सो आपका बिल्स पेबल्स कितने का, 50,000 का, ठीक है. सो व्हाट विल बी योर करेक्ट आंसर, एसेट एंड लाइबिलिटीज बोथ विल इंक्रीज बाय 50,000 एंड देयर विल बी नो चेंज ऑन इक्विटी, ठीक है. सो डिक्रीज तो होगा नहीं, इंक्रीज एसेट इंक्रीज लाइबिलिटी, सो ऑप्शन 2 विल बी राइट आंसर फॉर दिस वन. बैलेंस शीट इक्वेशन, इसको हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था यूनिट नंबर 12 और 13 ऑफ मॉड्यूल बी का पहला यूनिट है. अच्छे से समझिए, कम से कम 2 क्वेश्चन आप इस पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं. इट विल बी फॉर हाफ मार्क्स और 1 मार्क्स, बस क्वेश्चन जरूर होंगे, ठीक है. नेक्स्ट वन, XYZ Limited, a manufacturing company, operate for from 10 years, is currently facing financial challenges, ठीक है, but is working on a turnaround plan and expect to continue operation. So which accounting concept is XYZ Limited relying on? तो क्या होगा आपका, it's a going concern. Business is a going concern concept. ठीक है, so it's a going concern concept, right? So going concern concept आपका generally हमें क्या बताता है कि business is a going concern. तो आपका like we जैसे जैसे ट्रांजेक्शन होंगे वैसे वैसे आपको रिकॉर्ड करने होंगे, एंड वी हैव लाइक वी कैन नॉट बाउंड, वी कैन नॉट हैव सम बाउंड्रीज कि इतने साल तक रहेगा या ऐसा रहेगा, ठीक है, वो सारी चीजें, ठीक है. सो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट इज एन अकाउंटिंग प्रिंसिपल दैट अज्यूम दैट कंपनी विल कंटिन्यू इट्स ऑपरेशन एंड रिमेन इन business for the foreseeable future. It implies that company will be able to meet its obligations, continue generating profit, and realize its assets, right? The going concern concept is important because it allows companies to present their financial statement in a manner that reflect the long term viability of the business itself. Again हम लोग अगर बात करें concepts and conventions की, downside 3 to 4 question will be based on that. Sometime it will be applied or sometime it will be direct, ठीक है. Next one, identify an example of an extraordinary item in a company's financial statement. Salaries paid, no. Retail income, no. आपका gain from sale of subsidy, it can be, ठीक है, gain or losses from sale and subsidy or investment, ठीक है. Interest earned from core business, no. So option 3 will be right answer for this one, ठीक है. So extraordinary item are gain or losses that are unusual and infrequent in nature and that are not expected to recur in the future. The sale of subsidy is an example. जैसे these are some major, जैसे losses from major natural disaster, ठीक है, gain or losses from lawsuit, gain or losses from sale of major asset or restructuring cost. So that is generally part of your extraordinary item in our balance sheet, right? The cost of an item of PPE, property, plants, equipment, should be recognized as an asset if the probable if it is probable that future economic benefit associated with them, with the item, with flow to the enterprise. And so this question is generally based on your accounting standard 10 which generally deal with property, plants and equipments, ठीक है. तो कोई भी चीज हम आपका उसको property, plants, equipments की तरह कब आपका basically consider करेंगे, one part is कि उसके फ्यूचर बेनिफिट होंगे, ठीक है, जैसे हम कोई मशीनरी एक्वायर करते हैं, सो वी डू हैव सम फ्यूचर बेनिफिट एसोसिएटेड विद दैट पर्टिकुलर मशीनरी, पहली चीज. दूसरा, द कॉस्ट ऑफ आइटम कैन बी मेजरेबल रिलायबली, यस इट कैन बी, ठीक है. तीसरा, इफ आइटम इज परचेज फ्रॉम नो, if the item has long expected useful life, if the item is insured, no. So क्या होगा आपका, second one will be this. तो option A will be correct answer. So as per accounting standard 10, property, plants, equipments would be recognized as an asset if it has a probable economic future outcomes and the cost is cost of the item can be measurable reliably, जैसे purchase cost, test run, fitting in others, that is the part of this, okay. So B is the cost of the item can be measured reliably. So this is as per accounting standard 10 which is which deal with property, plants and equipments. Next one, BRS is prepared to ensure that the balance shown in cash book match with balance shown in passbook, which situation would result in a higher balance in passbook, ठीक है. तो हमने
पहले जो सेशन हुआ था, पिछले सेशन, उसमें भी हमने इसके ऊपर एक डिस्कशन किया था, ठीक है। जैसे मैंने आपको इनका बेसिक डेबिट एंड क्रेडिट का रूल भी समझाया था, ठीक है। इन केस ऑफ पासबुक, डेबिट क्रेडिट रूल आर वेरी सिंपल. Inflow is credit, outflow is debit. Means favorable balance we generally credit and unfavorable balance debit. But in case of past cash book, we use reverse entry. Debit is a favorable balance and credit is a unfavorable balance. ठीक है, ये आपको याद हो गया होगा, आई होप, ठीक है. अब क्या हो सकता है कि which situation would result in a higher balance in passbook. कौन कौन से ऐसे सिचुएशन हो सकती है जहां पे कैश बुक में बैलेंस कम हो और पासबुक में ज्यादा हो. जैसे आपका कैसा सिचुएशन हो सकता है, मतलब कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन जिनके बारे में आपका जो अकाउंट इंचार्ज है उसको इन्फॉर्मेशन नहीं है. जैसे कोई कस्टमर के द्वारा डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिया गया, या फिर बैंक के द्वारा जो एनुअल इंटरेस्ट है वो आपका, या क्वार्टरली इंटरेस्ट क्रेडिट किया गया, या फिर आपका कोई चेक इशू किया गया कंपनी के द्वारा, बट जो जिसको वो इशू किया गया उसने अभी तक उसको प्रेजेंट नहीं किया फॉर क्लियरिंग. सो दीज आर सम सिचुएशन जहां पे आपके कैश बुक के बैलेंसेस ज्यादा होंगे, ठीक है. सो चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ट्रू. डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय कस्टमर, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक. सो दीज ऑल सिचुएशन, ठीक है. तो इसके अलावा भी और क्या क्या हो सकते हैं, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है. तो पहले आपका चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक. एक ऐसा भी हो सकता है कि कोई डायरेक्ट चेक डिपॉजिट किया गया और वो कैश बुक से मिस हो गया, ठीक है. चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड. हमने एज अ कंपनी चेक इशू किया, 1 अक्टूबर का डेट था, बट जिसको चेक इशू किया गया उसने अभी तक उसको प्रेजेंट नहीं किया, तो वो भी पासबुक का बैलेंस, पासबुक कब उस बैलेंस को डेबिट करेगा, जब एक्चुअली वो क्लियरिंग के लिए आएगा, ठीक है. इंटरेस्ट अलाउड इन पासबुक, बिल्स रिसीवेबल्स डायरेक्टली कलेक्टेड बाय बैंक, direct payment by customer into bank account, and check issued written on technical grounds, और रॉन्ग क्रेडिट गिवन बाय इन दी पासबुक. बैंक ने उसके अकाउंट को रॉन्ग क्रेडिट कर दिया. ऐसा होता है ना कई बार, आपका कई कस्टमर्स के अकाउंट में अच्छा खासा अमाउंट आपका क्रेडिट हो जाता है. दैट कैन बी योर सिचुएशन, ठीक है. तो दीज आर द एरियाज जहां पे आपका क्या होगा, जो पासबुक का बैलेंस ज्यादा होगा कंपेयर टू योर कैश बुक. नेक्स्ट वन, XYZ company maintain its bank account with the ABC Bank. At the end of the month, XYZ company prepare a bank reconciliation statement, BRS statement, to match the record. अब क्या क्या हुआ है, पहला the reconciliation process reveal क्या क्या issues है. पहला, outstanding check issued by XYZ company totaling 10,000 have not been presented फॉर पेमेंट. तो अभी ये आपका क्या होगा, 10,000 प्लस दिखाएगा क्या पासबुक के अंदर, और कैश बुक के अंदर 10,000 कम दिखाएगा. बिल्स रिसीवेबल्स डायरेक्टली कलेक्टेड बाय बैंक, तो यहाँ पे आपका अगेन पासबुक 5,000 से ज्यादा दिखाएगा. The bank statement shows receive charges of 5,000 deducted by bank. सर्विस चार्जेस आपका, तो यहाँ पे कैश बुक का माइनस होगा, पासबुक में आपका मतलब सर पासबुक में माइनस होगा, कैश बुक में वी हैव टू माइनस एट द टाइम ऑफ रिकंसिलिएशन. व्हाट एडजस्टमेंट शुड बी मेड इन बैंक रिकंसिलिएशन बेस्ड ऑन दिस. तो हमें क्या करना होगा, कैश बुक के अंदर क्या एंट्रीज होंगी, 10,000 प्लस 5,000 ऐड होगा फर्स्ट टू एंट्रीज, एंड कैश बुक के मतलब दीज विल बी द डेबिट बैलेंस, एंड क्रेडिट बैलेंस मींस अनफेवरेबल में क्या होगा आपका 500 है ना चार्जेस. सो इट इज हाउ मच 500, 500 माइनस होगा, ठीक है. सो 10,000 add 10,000 for outstanding check, deduct 5,000 no, add deduct 10,000 for outstanding check, 5,000 for this no, deduct 10,000 for outstanding no, add 10,000 and add this and deduct 500 for this. तो ऑप्शन 4 will be right answer for this particular one. Understood? समझ में आ रहा है. तो जो पिछला क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन आपका इस मतलब इससे पहले वाला जो क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, वही क्वेश्चन आपका केस बेस आपका कैसे बन सकता है, कुछ इस तरीके से, ठीक है. तो सिंपल से लॉजिक के साथ ये आपके क्वेश्चन जो कि सॉल्व होंगे. नेक्स्ट वन, इफ अ कंपनी बाय ऑफिस सप्लाईज वर्थ ₹500 बट द अकाउंटेंट mistakenly record 50 rupees in the office supply account, this error is an example of, first of all it is a single type of error, मतलब it is also known as वन साइड एरर. ठीक है, दो तरीके से आपका रेक्टिफिकेशन होता है, वन साइड एंड टू साइड. ठीक है, वन साइडेड एरर्स आर वेरी सिंपल इन करेक्शन, क्योंकि आपको वहां पर और कुछ नहीं करना, एंट्री वेंट्री सब कुछ सही है, 500 का आपका
50 हुआ, ठीक है, तो 450 के साथ आपको ऐड करना है, ठीक है, क्योंकि बाकी एंट्रीज आपकी सही है। टू साइडेड में क्या होगा, जहां पे दो या दो से ज्यादा अकाउंट आपका इफेक्ट होंगे, ठीक है। सो इट इज एन एरर ऑफ, ये क्या है आपका, इट इज एन एरर ऑफ कमीशन। कमीशन एरर क्या होते हैं, जहां पे जो अकाउंट इंचार्ज है उसकी नेग्लिजेंस की वजह से जो एरर्स आपके आते हैं। सो एरर ऑफ कमीशन विल बी करेक्ट आंसर। ओमिशन इज लाइक जहां पे वो एंट्री को खा गया, मतलब ये रिकॉर्ड ही नहीं किया उसने, या रिकॉर्ड किया तो खाली आपका एक डेबिट या क्रेडिट एक ही साइड आपका रिकॉर्ड किया, ठीक है। सो फुली पार्शियली। ओमिशन आपका, ओमिशन मतलब खा जाना। कमीशन इज लाइक कि जहां पे जो टोटलिंग एरर्स हैं या जो ऐसे एरर्स हैं, या डेबिट के बैलेंस को क्रेडिट में, क्रेडिट को डेबिट में ले आया, ठीक है। एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री आपका, ठीक है, तो ये आपका जनरली प्रिंसिपल एरर हो जाएगा, ठीक है, और आपका प्रिंसिपल एरर, राइट। सो दिस इज डाउन। सो सेकंड विल बी राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर वन। नेक्स्ट वन, ABC company purchased a new machine worth rupees 50,000. The machine has an estimated useful life of 5 years and no salvage value. Salvage value is 0. Calculate annual depreciation expense by using straight line method. ठीक है, ये तो मतलब बहुत ही आसान है। मैंने आपको डेप्रीशिएशन के ऊपर एक डेडिकेटेड सेशन कराया है, ठीक है, तो कम से कम 3 मार्क्स आपको जो आने वाले सेशन एग्जामिनेशन में देखे जाए। Sorry guys. So what will be your correct answer? How we calculate depreciation by using straight line method? One of the simplest method to calculate depreciation. It is cost minus salvage value divided by useful life. अब यहाँ पे salvage value है नहीं, cost कितनी है आपका 50,000, तो 50,000 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू हाउ मच, 10,000, ठीक है, 5 years आपका है, ठीक है। सो व्हाट विल बी योर करेक्ट आंसर? ऑप्शन 4 विल बी राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट वन, 1st July 2021, Arya Limited bought a machine worth rupees 1,20,000 and incurred an expense of 20,000, ठीक है, installation expense, ठीक है। The machine has an expected useful life of 10 years and salvage value is 20,000. Company accounting period end on 31st December each. What will be the depreciation expense for the year ending 31st December 22? यूजिंग द रिटन डाउन वैल्यू मेथड। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल है। टेक्निकलिटी क्या है इसमें आपका, पहले तो मतलब जैसे आपका अगर हम लोग बात करें कॉस्ट का, सो कॉस्ट इक्वल टू परचेज कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन कॉस्ट। कितना है, परचेज कॉस्ट आपका 1,20,000, ठीक है, और इंस्टॉलेशन कॉस्ट इज हाउ मच, 20,000, तो ये कितना हो गया, 1.40 लाख। दिस इज द कॉस्ट एज पर प्रॉपर्टी प्लांट्स इक्विपमेंट आपका जो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, योर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, ठीक है। दूसरा कॉस्ट माइनस सेल्वेज वैल्यू। सेल्वेज वैल्यू कितनी है इसमें आपका 20,000, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1,40,000, तो ये कितना हो जाएगा 1.20 लाख, ठीक है। सो नाउ डेप्रीशिएशन बेस इज हाउ मच, 1,20,000, ठीक है। अब 1,20,000 के ऊपर आपको डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करना है। देयर इज नो यूज ऑफ दिस ईयर्स, आपको क्योंकि रिटन डाउन वैल्यू मेथड से यूज करना है, तो रिटन डाउन वैल्यू मेथड क्या होता है, इट इज बेस्ड ऑन डिक्लाइनिंग बैलेंस एंड द रेट ऑफ डेप्रीशिएशन इज फिक्स फॉर द गिवन टाइम ड्यूरेशन। तो कैसे निकलेगा? अब एक और चीज यहां पे है कि इन्होंने एसेट परचेज किया है 1 जुलाई 2021 को, और बुक क्लोज हो रही है कौन सा, 31 मार्च को, ठीक है। तो 1 जुलाई टू 31 मार्च, दैट मीन्स फॉर फर्स्ट ईयर डेप्रीशिएशन रेट विल बी अकाउंटेड फॉर 6 मंथ ओनली। तो आप या तो जितना आपका हो रहा है, जैसे 1,20,000 का 12%, ठीक है, 1,20,000 का 12%, उसको डिवाइड बाय 2 कर दो, या फिर आप 1,20,000 का क्या करो, 6% से डेप्रीशिएशन कैलकुलेट कर लो, ठीक है। सो इनटू अगर हम करते हैं इसको 6%, 0.06, सो इट इज इक्वल टू 7,200। सो फर्स्ट ईयर डेप्रीशिएशन विल बी 7,200, ठीक है। फॉर्मूला याद है ना, कैसे निकालते हैं इससे हम लोग, आपका डेप्रीशिएशन बेस विच इज आपका डिक्लाइनिंग बैलेंस मोडस इनटू आपका डेप्रीशिएशन रेट, ठीक है, डेप्रीशिएशन रेट। तो पहले साल का हम लोग 6 महीने का है, तो इसलिए 6% कर दे रहे हैं क्योंकि 12% था। तो अगर आप 1,20,000 माइनस इनटू अगर 0.06 करते हैं तो इट इज आपका 6% इक्वल टू 0.06, तो इट इज आपका कितना 7,200। सो नाउ अब रिटन डाउन वैल्यू मेथड के अंदर हमें क्या करना होता है,
जो पहले अमाउंट था, ठीक है, सो 1,20,000 माइनस कितना 7,200, सो इट इज 1,12,000। अब एसेट वैल्यू एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर एसेट की वैल्यू कितनी है 1,12,800, ठीक है, तो इसका 12% इंटू 12% 0.12, सो इट इज equal to how much? Second year depreciation will be 13,536. So this will be your answer, ठीक है, हमें आपका 13,500, so option 3 will be your answer for this particular question. तो इस तरीके से रिटन डाउन बैलेंस या जिसको हम लोग डिक्लाइनिंग बैलेंस के नाम से आपका जानते हैं। अंडरस्टूड? क्लियर है? सबको समझ में आ गया? ठीक है, सो बहुत सारा हमने प्रैक्टिस किया इस पर, अच्छे से एक बार देख लें। एक और क्वेश्चन, रिटन डाउन वैल्यू मेथड इज अ डेप्रिसिएशन मेथड वेयर डेप्रिसिएशन दिस अ मशीन वाज परचेज फॉर 80,000 with an estimated useful life of 5 years. Scrap value is 7,000. Depreciation rate is 20%. So what will be the book value? अब यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है? बुक वैल्यू पूछ रहा है कौन से ईयर में? एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर यूजिंग रिटन डाउन वैल्यू मेथड। तो कैसे निकालेंगे हम लोग? ठीक है, सो आपका डेप्रीशिएशन एसेट का वैल्यू कितना है 80,000 एंड सेल्वेज वैल्यू इज हाउ मच? आपका 7,000, ठीक है, सो डेप्रीशिएशन बेस इज हाउ मच? आपका 80,000 माइनस 7,000, सो इट इज 73,000, ठीक है, सो 73,000 का 20%, ठीक है, 20% इज इक्वल टू कितना होता है? 7,000, 14,000 समथिंग, ठीक है, कितना होएगा फर्स्ट ईयर का डेप्रीशिएशन? 73,000 इंटू 0.2 is equal to 14,600. So first year depreciation will be 14,600, ठीक है, so this is depreciation for first year. Now minus 14,600, ठीक है, so sorry 600, तो ये आपका क्या हो जाएगा? So 73,000 minus 14,600 is equal to कितना होता है आपका? 58,400. So at the end of first year के end में, so at the end of first year asset value is this, ठीक है, हमें क्या पूछा है? बुक वैल्यू ऑफ मशीन एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, तो सेकेंड ईयर का डेप्रीशिएशन निकालना पड़ेगा इनटू 0.2, सो इट इज हाउ मच? आपका सेकेंड ईयर का डेप्रीशिएशन इज इक्वल टू 11,680, ठीक है, तो इसको इसमें से माइनस कर लेते हैं, माइनस 58,400, सो इट इज 46,000। तो आंसर क्या हो जाएगा? एसेट वैल्यू एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर इज 46,720, ठीक है, अगर हमारा कैलकुलेशन सही है तो आपका आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है, 46,720 will be right answer for this one. So now what is the difference between these two question? पिछले क्वेश्चन में उसने क्या पूछा था? डेप्रीशिएशन अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, तो यहाँ पे आपका डेप्रीशिएशन अमाउंट अगर सेम क्वेश्चन होता तो आंसर होता 11,680, बट इस क्वेश्चन में उसने क्या पूछा? व्हाट विल बी द एसेट वैल्यू एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, तो इट इज आपका 46,720, वो दोनों भी आपसे पूछ सकते हैं, सो बी केयरफुल, राइट? समझ में आ गया सबको? आई होप यू गाइज गेटिंग दिस पर्टिकुलर थिंग क्लियरली। सो अगर कोई डाउट होता है तो प्लीज मेंशन करें, ठीक है। A company bought a machine worth rupees 2 lakh with the estimated production capacity of 50,000 and residual value is 20,000. Machine produced 10,000 unit this year using a machine. So you have to calculate depreciation expense by using unit of production. So actual use based method, which is known as unit of production method. How we calculate depreciation? So depreciation as per unit of production is equal to actual uses divided by expected या estimated uses into cost minus salvage value. तो अब actual uses कितना है? 10,000 यूनिट, ठीक है, डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड आपका लाइफ टाइम इज हाउ मच? आपका 50,000 इनटू कॉस्ट आपका कितना है? 2 लाख माइनस सेल्वेज वैल्यू इज हाउ मच? 20,000, ठीक है। इफ यूल सॉल्व दिस इक्वेशन यू विल गेट टू नो योर आंसर, ठीक है, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो कितना होता है? 10 डिवाइड बाई 50, सॉरी, सो इट इज 0.2 इंटू 1,80,000, ठीक है, तो 36,000, so 36,000 means option A will be right answer for this one. So अगर हम जैसे पहले साल का आपका डेप्रीशिएशन आपका 10,000 यूनिट प्रोड्यूस हुआ है तो डेप्रीशिएशन कितना होगा? 36,000। नेक्स्ट ईयर सपोज दैट
For second year, production is supposed that unit produced are supposed at 15,000. So now you have to mention what will be the depreciation expense for second year. Do mention into the comment section. So I'll get confidence कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं. Next one. ABC Corporation earned a net income of 5 lakh rupees for the fiscal year ending 31st March 22 with 1 lakh common share and no preference shares. And equity share market price is 40. इसका जो current market price है वो 40 है. So you have to calculate आपका earning per share EPS. ठीक है, आपको क्या calculate करना है? EPS आपका calculate करना है. बहुत ही आसान question है. ठीक है. So how we calculate EPS? आपका module C ratio analysis. ठीक है. So EPS earning per share is equal to your EPS is आपका profit after tax minus dividend डिवाइड बाय नंबर ऑफ वेटेड नंबर ऑफ शेयर्स और नंबर ऑफ शेयर्स. ठीक है, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स. ठीक है, तो अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज हाउ मच 5 लाख. ठीक है, एंड डिवाइड बाय आपका नंबर ऑफ शेयर्स 1 लाख. डिविडेंड इसमें है नहीं, प्रेफरेंस शेयर है नहीं, तो आपको कुछ होगा नहीं. ठीक है, सो इट इज आपका 5. ठीक है, सो 5 रुपीज. तो इसका जो ईपीएस होगा, ठीक है, अर्निंग पर शेयर विल बी हाउ मच 5 रुपीज. ठीक है, हमें क्या कैलकुलेट करना था इसमें, हाउ शुड बी द अर्निंग पर शेयर विल कंप्यूटेड. तो आप अर्निंग पर शेयर विल बी कितना आपका 5 रुपीज होगा. ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 10. अब यहीं से अगर ये आपसे पूछ लेता, मतलब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे मिलेगा, वो आपको ईपीएस नहीं पूछेगा, वो आपको बोलेगा बेस्ड ऑन गिवन डेटा कैलकुलेट पी रेशियो. आपको प्राइस टू अर्निंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए देगा. तो कैसे निकलेगा, पहले आपको ईपीएस कैलकुलेट करना होगा, देन पी रेशियो इज करंट मार्केट प्राइस डिवाइड बाय ईपीएस. ठीक है, करंट मार्केट प्राइस कितना है हमारा 40 है, तो 40 डिवाइड बाय ईपीएस इज 5, तो आपका पी रेशियो विल बी 8. तो आपका ईपीएस फॉर दिस कंपनी शेयर इज कितना 5 रुपीज पर शेयर एंड पी रेशियो प्राइस टू अर्निंग रेशियो इज हाउ मच 8 आपका. ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये आंसर बनेगा. तो हमें सिर्फ और सिर्फ ईपीएस पूछा था, तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा 5 होगा. ठीक है, नेक्स्ट वन. Complete the following statement related to accounting expenditure. So we have two type of expenditure, capital and revenue. Revenue are general expenditure on day-to-day activities and capital based on capacity building with long-term benefit. तो revenue expenditure आपका जैसे salary, rent, utility expense. Capital expenditure are basically acquisition of property, plants, equipments, goodwill, patent, copyrights, right? So आप देखो यहाँ पे the dash amount is recommended under capital expenditure is, तो हमारे पास क्या है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, लार्ज होता है. ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर आर लिस्टेड ऑन, ये किस में रहते हैं, हमारे बैलेंस शीट में रहते हैं. ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर आर जनरली पार्ट ऑफ योर बैलेंस शीट एंड बैलेंस शीट में हम इनको एज ए एसेट दिखाते हैं. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर जनरली, सो दे आर रिकरिंग इन नेचर. ठीक है, सो ये आपका किस में होता है, रिकरिंग होते हैं. तो अब मैच कर लो, लार्ज बैलेंस शीट रिकरिंग. ठीक है, लार्ज बैलेंस शीट रिकरिंग, तो पहला ही आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए. बहुत सिंपल सा. नेक्स्ट वन. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर एक्सपेंस दैट कंपनी इनकर ड्यूरिंग रेगुलर ऑपरेशन टू अर्न रेवेन्यू यूजुअली रिकरिंग. आइडेंटिफाई एन एक्सपेंस विच इज नॉट क्लासिफाइड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. तो इनमें से कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है, तो क्या होगा आंसर, कॉस्ट ऑफ रीलोकेटिंग ऑफ एंटायर एंटिटीज ऑपरेशन, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. ठीक है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फॉर प्रोडक्शन, कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. Installation of cost of machinery, capital expenditure. Salary, wages, revenue expenditure. So what will be your correct answer? Option 3 will be your right answer because it is a capital expenditure. Installation, test run, fitting, freight, ये सारे आपके capital expenditure के अंदर आते हैं as per property, plants, equipment, while you recognize the cost of an asset. Next one. In accounting, हाउ सस्पेंस अकाउंट डिफाइन. सस्पेंस अकाउंट क्या होता है, ट्रायल बैलेंस. तो ट्रायल बैलेंस आपका कैसे होता है, फॉर्मेट समथिंग लाइक दिस. ठीक है, पर्टिकुलर्स, ठीक है, लेजर फोलियो एंड आपका डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस. एज पर रूल टोटल ऑफ डेबिट शुड बी इक्वल टू टोटल ऑफ क्रेडिट. ठीक है, अगर इन दोनों का टोटल इक्वल नहीं होता है, so we create a temporary account which is known as suspense account. ठीक है, तो हम suspense account क्रिएट करेंगे जिस साइड भी आपका बैलेंस लो होगा.
So it not placed in any particular category of account and is just a temporary phenomenon. बिल्कुल सही. It is a long term liability. No. It is an account exclusively recording cash transaction. No. It is a permanent account. No. ठीक है. तो ऑप्शन 1 will be correct answer. ये एक टेम्परेरी अकाउंट है. तो इसके बाद जैसे हमने सस्पेंस अकाउंट आपका रखा, ठीक है, वी विल फाइंड आउट द एरर कि कहाँ पे सस्पेंस था, वी विल रेक्टिफाई दैट वन एंड विल रिमूव द सस्पेंस अकाउंट. दैट्स इट. राइट. नेक्स्ट वन. Which of the following statement correct regarding capital and revenue expenditure? Capital expenditure is incurred for acquiring or improving long-term asset. Revenue expenditure for day-to-day operational expense. पहला सही है. ठीक है. हमें क्या ढूंढना है? आपका करेक्ट ही ढूंढना है, तो पहला करेक्ट है. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑलवेज प्रोवाइड लॉन्ग टर्म, नो शॉर्ट टर्म बेनिफिट. बोथ कैपिटल एंड रेवेन्यू रिकॉर्डेड इन द इनकम स्टेटमेंट. नो. कैपिटल रिकॉर्डेड इन बैलेंस शीट. ठीक है. आपका बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड में, ठीक है, एसेट साइड में रहेगा एंड इट इज पार्ट ऑफ योर इनकम स्टेटमेंट. तो ये गलत हो जाएगा. कैपिटल एक्सपेंडिचर इज रिलेटेड टू अ रूटीन एक्सपेंस. नो, इट इज रिलेटेड टू आपका वन टाइम एक्सपेंडिचर विद लॉन्ग टर्म बेनिफिट. सो ऑप्शन ए विल बी वन विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर वन. नेक्स्ट वन. व्हाट कंडीशन मस्ट मीट फॉर अ होल्डर ऑफ होल्डर टू बी कंसिडर्ड अ होल्डर इन ड्यू कोर्स? तो ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है आपका? दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन बिल ऑफ एक्सचेंज. ठीक है. होल्डर कौन होता है? बेसिकली इन केस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, ड्रॉर इज होल्डर. ठीक है. ड्रॉर मीन्स क्रेडिटर, मीन्स सेलर. ठीक है. तो जिसने जो बेसिकली उस बिल ऑफ एक्सचेंज को होल्ड करता है, जो उसको मतलब जो सिंपली कहें तो जो उसका पेई है. ठीक है. अब होल्डर इन ड्यू कोर्स को आपका फुलफिल करने के लिए देयर आर थ्री कंडीशन, तीन कंडीशन जिनको आपको फुलफिल करनी होती है. पहला कि मतलब कोई मतलब देयर शुड बी अ प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स जो उसको सपोर्ट करे. मतलब सेलर ने बायर को कुछ चीज बेची है, वो आपका, ठीक है, मतलब वो किसी लीगल ट्रांजेक्शन का पार्ट है. जो एक्सपायरी डेट है उससे पहले वो आपके पास होना चाहिए, आपके नाम पे होना चाहिए, इस तरीके से. ठीक है. सो ही ऑब्टेन द इंस्ट्रूमेंट फॉर वैल्यूएबल कंसिडरेशन. ट्रू. ही बिकम होल्डर ऑफ इंस्ट्रूमेंट आफ्टर, नो, बिफोर मेच्योरिटी. he had a cause to believe that any defect exists. No, there is no defect exist in the title. तो ये तीन कंडीशन आपका. ठीक है. पहला सही है. दूसरे वाले में क्या करना है आपको? बिफोर मेच्योरिटी. एंड तीसरे वाले में नो डिफेक्ट. तो these three statement that generally define the holder in due course, right? तो इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा. जैसे valuable consideration, he become holder of instrument before maturity. He had no cause to believe that any defect exists in this particular title, right? So एक terminologies आपकी हैं. I'll share the list also. ठीक है. Which of the following transaction will be included in a cash book? तो इनमें से कौन सा ट्रांजेक्शन दैट विल बी पार्ट ऑफ कैश बुक? तो क्या होगा आपका? कैश सेल वर्थ ₹10,000, परचेज सेल आपका 50,000, क्रेडिट सेल आपका 30,000. सो दीज विल बी पार्ट ऑफ कैश बुक एंड दिस विल बी पार्ट ऑफ डे बुक. ठीक है. डे, ये आपका किसका पार्ट होगा? डे बुक का. कैश बुक इंक्लूड ओनली ऑन कैश ट्रांजेक्शन. कैश बुक में सिर्फ और सिर्फ आपका डेबिट और क्रेडिट ट्रांजेक्शन और सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन उसमें मिलेंगे. क्रेडिट ऑन सेल विल बी पार्ट ऑफ सेल्स डे बुक. ये सेल्स डे बुक का पार्ट होगा. तो क्या होगा करेक्ट आंसर? 1 and 2. दैट मीन्स ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस वन. ठीक है. सो द सेल्स आर डन ऑन क्रेडिट दे आर रिकॉर्डेड इन सेल्स जर्नल और सेल्स डे बुक. ठीक है. तो ओनली टू, जैसे आपका कैश रिकॉर्डेड वन एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन ओनली एंड कैश सेल 10. तो ये दो आपका जो इसमें रहेंगे. Error that result from a lack of ability to distinguish between a productive and non-productive expense. मतलब आपका कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल, ये रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं, या मतलब कोई गोल्डन रूल फॉलो नहीं हो रहा है, या अदर्स. सो दीज टाइप ऑफ एरर्स आर जनरली पार्ट ऑफ एरर ऑफ प्रिंसिपल. ठीक है. तो एरर ड्यू टू इनएबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन रेवेन्यू एंड कैपिटल. Error due to inability to distinguish between business expense and personal expense. So these kind of entries or these kind of errors are generally part of your आपका error of principle. ठीक है. Next one. When the drawee of bill enable or refuse to make payment on due date, so the bill is said to be, क्या होगा आपका? ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं करेगा तो इट विल बिकम डिफॉल्ट. तो दैट मीन्स डिसऑनर ऑफ बिल. ठीक है. तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आपका डिसऑनर ऑफ बिल. अब ये जो है ना, ये मैंने आपको बहुत डिटेल में आपका फाउंडेशन वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया है. अगेन आई विल सजेस्ट प्लीज गो थ्रू दिस पर्टिकुलर वन. दिस इज योर होमवर्क फॉर द
डे। अच्छे से इसको पढ़िए, इतने पे ही खत्म नहीं होता, इसके बाद आपका एक और लिस्ट आपको मिलेगी। बिलीव में गाइस, यू विल फेस वन क्वेश्चन इन IAN IFS, वन क्वेश्चन इन IAFM, इन्हीं के ऊपर आपका, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। RBI empowered dash under section dash of Banking Regulation Act to order special audit of account of a banking company। तो स्पेशल ऑडिट किस में होता है आपका? सेक्शन 30 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन B। सो D विल बी राइट आंसर। ये मैंने आपको लास्ट टाइम होमवर्क दिया था, आप लोगों ने आंसर नहीं किया, ठीक है, तो आंसर करा करें, पार्टिसिपेट करोगे याद होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन गाइज, okay, this is it, so this is it for the day। so these were a set of question around 20-25 question जो हमने यहाँ पे प्रैक्टिस किए, ठीक है। so I hope you enjoy this particular practice, you are enjoying these kind of session, ठीक है। so do share your feedback, कैसा लगा सेशन जरूर बताएं, and if you have some queries feel free to reach, right। so this is our telegram group, यहाँ पे आप हमें reach out कर सकते हैं। for PDF we'll share in this group also, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया, या फिर आप एप्लीकेशन में एक साथ सारे PDF आपका डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो जो आपको सुटेबल लगे वहां से दोनों के ही लिंक, आपका जो हमारा एप्लीकेशन है उसका लिंक भी और टेलीग्राम का लिंक भी आपका डिस्क्रिप्शन में दिया गया, तो जहां भी आपको सुटेबल लगे वहां से आप इनको डाउनलोड कर लीजिए, राइट। तो आज के लिए इतना ही करेंगे गाइस, आई विल सी यू टुमारो एट सेम टाइम एंड विद अनदर सेट ऑफ क्वेश्चन, तो जहां पे हम लोग फिर से एक और क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस करेंगे। एंड बिलीव मी, फाउंडेशन क्लासेस आर, आई होप यू गाइज आर डन विद दोज पर्टिकुलर क्लासेस। मैंने अपनी तरफ से पूरा काम कर दिया, अब आपकी बारी है, ठीक है। नाउ टाइम फॉर प्रैक्टिस। और इस तरीके से अगर आप रेगुलर टिल एग्जामिनेशन फॉलो करेंगे, आई कैन मेक श्योर कि यू विल स्कोर 65+ इन योर अपकमिंग एग्जामिनेशन बाय वॉचिंग दिस मच ऑफ कंटेंट ओनली, ठीक है, दिस मच ऑफ कंटेंट ओनली, राइट। तो आज के लिए इतना ही कहते हैं, आई विल सी यू टुमारो and do like and do share this particular session with your fellow bankers so they can take advantages of these particular classes। and कैसा लगा ये जरूर बताइएगा, ठीक है। so this is it, bye bye, take care all, have a nice day, thank you।